Okay. Good morning. Today we will do the remaining sum of the first exercise. That question number 7, 8, and see that question number 7. Now these all sums are difficult little from the previous answer. It's given that a cylinder and a cone have an equal base. Okay, here also you observe that cylinder and cone having the equal base. The cone base and the cylinder base both are the same. And the height of the cylinder is 3 centimeter. Height of cylinder is 3 centimeter. And the area of the base is 100. That means this area 100 centimeter square. I already tell the area formula. Base area is the pi r square. Volume of the solid figure. So from this 500, that is total volume is the 500 centimeter cube. Find the total height. That means if I got the height of this one, height मिल जाएगा, then we will add in the total height. That means we will find the height of the cone. So first I write here for that means given data we are writing it. Okay, given data we are writing height of cylinder, that is h1 is equal to 3 centimeter. Base area both are same, so base area is equals to pi r square plus omega is equals to 100 centimeter square. And the volume of object is equals to 500 centimeter cube. So given it all about height of cylinder दिया है, इसको हमने h1 लिया क्योंकि हमको सेकंड हाइट और h2 मिलेगा. बेस एरिया दिया हुआ है, दोनों का एरिया सेम दिया है, इसलिए r1 r2 कुछ नहीं लिया, सिर्फ pi r square plus 100. Volume of object का वॉल्यूम कितना दिया है 500 centimeter cube. Now I can say here volume of object is equal to volume of cone plus volume of cylinder. Yes or no? That means the total object is the combination of cone and cylinder. So I can say that volume of that object is equal to volume of cone plus volume of cylinder. Volume of object given how much? 500. In case of volume of cone, I can write the formula 1/3 pi r square. Now the cone is the height of the cylinder is h1. That means obviously it will h2 plus volume of cylinder. Formula is the pi r square. I can say this h1. So 500 is equals to 1/3. In this place pi r square, I can place 100 because both are there. I will square 100. So I can write into 100 into h2 plus 100 into your h is given. That means 500 is equals to 100 h2 upon 3 plus 300. Now we do one thing. We take the 300 will be set. So we will subtract. 500 minus 300 is equals to 100 h2 upon 3. Then if you subtract, 5 minus 3 will be 200 is equals to 100 h2 upon 3. Now to find h2, keep the h2 there and take this 100 upon the left side. So it will be 200 into 3 upon 100. So 3 to the 6. If my h2 is the 6 centimeter, then we can say that total height is equals to height of cone plus height of cylinder. Height of cone is not 6, height of cylinder given 3. That means it is how much? और ऊपर ये दिया हुआ given data. Height of cylinder 3 centimeter. तो मैंने उसको notify कर दिया h1 because h is going to different here. So it will be the different level. Base area both in the same. That's why pi r square equals 100 and volume of object is given 500. Write the object formula here. Volume of object is equals to volume of cone plus volume of cylinder. जो object बनाया वो cone और cylinder से बना हुआ. तो पूरा volume कैसे होगा? cone का volume और cylinder का volume को मिला. Then 500 equals to 1/3 pi r square because of the formula of cone and here the formula of cylinder. Pi r square in both places we can substitute 100 where is given.
then 5 keep like this, 1 upon 100 is 200 into 3. Now if you solve this one, it will be 100, 1 into 100 will be 100 into x2, 100 is 2 upon 3, this will be 3 into 100 will be 300, take this 300 here, so it will be minus. Now remaining 200 equals to 100 h2 upon 3, we want the h2. So take this 100 upon 3 from right to left side, so it will be 3 upon 100, 2 0 2 cancel, 2 3 the 6, that means we got this question mark as the 6. So total height will be 9. Now backside answer something here wrong, so we'll go for this. बैकसाइड में जो आंसर दिया रॉन्ग दिया हुआ है तो ध्यान देना और उसको कट करके उसको मार देना. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल दिस क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, रिमेंबर, सो प्रैक्टिस मोर. क्वेश्चन नंबर 8. Eighth one is the most important question. It's given that in the figure 7.11, a toy made up from a hemisphere, this part is the hemisphere part, a cylinder, this part is the cylinder, and a cone, that means the upper part is the cone. फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय. इसका टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि गिवन डेटा से क्या क्या दिया हुआ है. now here the radius is given 3 cm. how much given? 3 cm. height is given how much? 4 cm. and this is height, that means the perpendicular height, not the standard height. and this height is given, that means for the cylindrical part 40 cm. कितना दिया हुआ है? 40 cm. पहले क्वेश्चन समझना. क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, total area of the toy. If I say about the total area of the toy, that means this outer part, जिसको मैं अभी लाइनिंग कर रहा हूँ. ओके, अभी तो इसका रेसिपी है. Now, for the cylinder, the same. What is the total area? The total area means this all and the base and the top also. This is the total area. For this cylinder, if I say curved surface area, means only this one. This is the curved part, not this top and base. Now, if I say for this figure, the CO, total area हमको टॉय का करना है, बट जब हम टॉय का टोटल ले रहे हैं तो सिलेंडर का सिर्फ इतना पार्ट था, अंदर का पार्ट आ ही नहीं रहा है, उसके लिए टोटल सरफेस एरिया. दैट मींस वी विल फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच फिगर. रिमेंबर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच फिगर. फर्स्ट, सेकंड, वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर एंड थर्ड फिगर. After getting the curved surface area, we will add all the curved surface area, that will be the total surface area. तो यहाँ कंफ्यूजन क्या हो सकता है? इस टोटल सरफेस एरिया पूछा है क्वेश्चन में, जब हम फाइंड आउट करेंगे फिगर के लिए तो वहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, तो वहाँ पे डाउट होगा सर ये सब तो टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो आपने कर्व सरफेस फॉर्मूला क्यों ले रहे? अगर मैं मान लें मैं कौन का टोटल सरफेस फाइंड आउट किया तो इसके साथ कौन आएगा? ये भी आएगा, बट ये हमारे टॉय के लिए टोटल सरफेस एरिया है, टॉय का अंदर वाला पार्ट होगा. टोटल मतलब क्या होता है? बाहर जितना सरफेस एरिया है टॉय का बाहर वाला हमको फाइंड आउट करना है, अंदर वाला नहीं. अगर मैं कोन का टोटल सरफेस फाइंड आउट करूंगा तो इसके साथ ये भी आएगा, बट इसके तो हमको कैलकुलेट नहीं करेंगे. अगर मैं सिलेंडर पे कैलकुलेट करूंगा इसके साथ ये भी आएगा और ये भी आएगा, बट हमको तो इनको चाहिए नहीं, तो हमको ये चाहिए. दैट मींस क्या करेंगे? सबका कर्व सरफेस फाइंड आउट करेंगे, उसको प्लस करेंगे तो टोटल सरफेस. अब गिवन डेटा में लिखते हैं अगेन फॉर conical part, radius equals how much? 3 cm. Height equals how much? 4 cm. We have to find the curved surface area. Okay. Now first, if I think about the curved surface area, अगर मैं इसके कर्व सरफेस एरिया के बारे में सोचूं, कोन का कर्व सरफेस एरिया, remind the formula that curve surface area of cone is now pi r l of cone. So pi is the number, r is given. What about the l? L is not given. Go for the formula, but you will find there l formula is l square equals to l square plus r square. If l square 25, then l equals to बस मिल गया है. अभी फाइंड आउट करेंगे. So curved surface area of cone is equals to pi r l.
pi is given in next to cylinder. This is not given, then we take no, not given. So take 3.14. The backside is there only pi form. So if the pi is like that, in place of R3, in place of L5, that means 15 pi centimeter square. Next to में pi form में दिया है तो pi form में. Now this one is finished for the conical part. Next we go for cylindrical part. Cylindrical part. That will write radius equals to 3 centimeter. तो cylinder का base radius है वही है. Height equals to write to 40 centimeter. Now curve surface of cylinder is 2 pi RH. Pi is the number, 2 is the number, R is given, H is given. So curve surface area of cylinder is equals to 2 pi RH. So equals to 2 into pi. R is the 3, H is the 40. So 2 3 is 6, 4 is 24. That means we finished up to second. Third was the hemisphere. From hemisphere. R equals to 3 centimeter because this radius will become here to 3 centimeter. Now we find the curve surface area. The curve surface area of hemisphere is the 2 pi r square. With that formula 2 pi r square. So the right curve surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square. 2 into pi, r square means 3 into 3. So this is 9 to the 18 pi centimeter square. See the step. This is the first, second, third. Then last we will write total surface area of toy is equals to total surface area of toy is equals to curved surface area of cone plus curved surface area of cylinder plus curved surface area of hemisphere. That means the first one is 15 pi, 240 pi plus 18 pi. If you add 8, 5, 13, there is 1, 2, 6, 7, 5. Okay, one second. क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन में दिया था कि टॉय का टोटल सरफेस फाइंड आउट करें. टॉय को हमको 3 पार्ट में डिवाइड किया. इसका जो फिगर में टोटल सरफेस एरिया बताया है कि सारे ऑब्जेक्ट के लिए कर्व सरफेस एरिया, इसलिए इंपॉर्टेंट समझना था कि इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दिया, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दिया, इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर दिया, सबको मिला के टोटल सरफेस एरिया. पहले जो कर्व एरिया फाइंड आउट कर दिया वहां पे एक्स्ट्रा स्टेप आएगा ये वाला स्टेप कि उन्हें इसका फॉर्मूला है पाई आ जाएगा. फिर क्वेश्चन हमको आरएच दिया हुआ एल नहीं थी, हमने पहले एल फाइंड आउट करके इसके फॉर्मूला से बाकी सब में जो दिया हुआ उसके हिसाब से फॉर्मूला करना, फिर सबको प्लस करना. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन नंबर we'll do 10 first. It's exactly same question like this. Question number 10. Then we'll go for the 9. Now what is given in question number 10? See, figure 7.13 shows that toy its lower part is a hemisphere. The lower part hemisphere. And its upper part is a cone. Find the volume and the surface area of the toy from the measure shown in the figure. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, दोनों का वॉल्यूम को प्लस कर देना, दोनों का कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर जैसे करा जैसे प्लस कर देना. ठीक है. अब गिवन डेटा में क्या दिया है? तो रेडियस दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर. दो चीज फाइंड आउट करना, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया. चलो सम करते हैं. See same thing. First we write for conical part.
इसमें दो चीज फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। उसमें सिर्फ सरफेस एरिया पूछा है। गिवन डेटा क्या है ना, r इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर दिस रेडियस and h is equal to 4 centimeter. Again the thing is that if I find the volume formula is तो 1/3 pi r square h, इसके लिए कोण भी है। So वॉल्यूम के लिए गिवन डेटा ठीक है, बट सरफेस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो आपका गिवन फॉर्मूला क्या है, pi r l, l का दिया हुआ है, मींस पहले से इसको फाइंड आउट करते हैं। मतलब इससे पहले जो स्टेप किए थे एग्जैक्टली सेम स्टेप। अगर l स्क्वायर 25 हुआ तो l क्या हो जाएगा, एक बार l मिल गया। अभी दो चीज फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 pi r स्क्वायर h, pi is given 2.14, r square means 3 into and h means 4, so it will be cancel, then multiply 4 3 are 12, 12 4 48 34 12 4 16 21 23 36 37 सेंटीमीटर वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। अभी इसी ऑब्जेक्ट का क्या फाइंड आउट करेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू pi r l, r is the 3, l is the 5, 5 to 15 to 60 there is 60 to 15 45 to 47, ये हो गया कर्व सरफेस। अभी सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा है, हेमिस्फीयर, फॉर हेमिस्फीयर रेडियस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। हमको दो फाइंड आउट करना है, क्या वॉल्यूम की और कर्व सरफेस एरिया। तो इसका वॉल्यूम फॉर्मूला हेमिस्फीयर के लिए क्या होता है ना, 2/3 pi r क्यूब, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 pi r स्क्वायर। सब डेटा गिवन है, इसको आगे चाहिए होता है। पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 pi r क्यूब, 2/3 pi is the 3.34, r cube is 110, 3 times 1 3 3 cancel, 3 3 9 9 का 80, तो मल्टीप्लाई 2 4 8 2 1 2 2 3 6, पहले 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 9 9 8 7 2 7 9 2 18 so 24 के लिए 9 6 54 to 56, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 9 9 7 7 9 2 18 25 22 9 6 54 to 56. After the volume we find the surface area, we find surface area. Surface area of hemisphere equals to 2 pi r square, that is 2 into 3.14 into 3 into 3. The same thing here also, 2 into 3.14 into that is you can write 56.5, but it will be centimeter square क्योंकि ये surface area हमें ज़्यादा वॉल्यूम क्यूब होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो हम फाइंड आउट टोटल कंस्ट्रक्ट जो होता है हम लिख लोगे, जैसे बता दूंगा वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को प्लस कर दो। फिर लिखो सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले लिखना है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर दोनों को प्लस कर दो। ओके, पहले बात समझो स्टेप्स क्या है। पहले एक पार्ट में ले लिए कोनिकल पार्ट डिस्कस कर यहां पर फाइंड आउट क्या था, दो चीज वॉल्यूम भी फाइंड आउट किया, सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। फिर ले लिए हेमिस्फीयर पार्ट, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया और सरफेस एरिया फाइंड आउट किया। अभी टोटल वॉल्यूम के लिए दोनों का वॉल्यूम को प्लस करना है और सरफेस एरिया दोनों का एरिया को फाइंड करता है। संख्या क्वेश्चन में क्या है, दो ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे वहां पे हम लोग कर रहे थे 3 ऑब्जेक्ट थे और वहां पे हम लोग सिर्फ सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे थे, बट यहाँ पे वॉल्यूम भी दिया है, इसलिए दोनों फॉर्मूला को यूज करना पड़ रहा है और दोनों को प्लस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन 9 बड़ा सिंपल है, so इसमें इसे याद रखना। इन द फिगर 7.1 of this figure, a cylinder wrapper of the flat tablet is shown. The radius of the tablet is 7 cm. हर एक टैबलेट का जो दिया है रेडियस कितना दिया है 7 cm. दैट मींस गिवन डेटा हम लिख देता हूं फॉर सिलिंड्रिकल tablet. सो वाले टैबलेट लिख देते हैं रेडियस इक्वल्स टू 7 cm, 7 mm. And the thickness is 5. Thickness is the height for that, and 5 mm. How many such tablets are wrapped in the wrapper? अब ये wrapper जो दिया नीचे दिया हुआ, that means wrapper के लिए क्या लिखूंगा? For this given cylindrical wrapper, for wrapper radius is equals to 14 mm. ठीक है? Sorry, diameter is equals to 14 mm. फिर हमें पूरा दिया है मतलब डायमीटर दिया, तो हम रेडियस कैलकुलेट कर देते 7 mm. अब इसका जो हाइट दिया हुआ जो नीचे वाला पार्ट हाइट है 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 mm. ये इंपॉर्टेंट है, जब सारे का यूनिट mm में है तो ये भी mm में होना चाहिए, पर है इसमें सेंटीमीटर, तो उसमें कन्वर्ट कर देंगे 100 mm. यहाँ पे दो रेडियस है R1 R2 H1 H2. अभी हमको क्वेश्चन में पूछा है कितने रैप कर सकते हैं, तो इसका एग्जांपल जैसे हम लोग खाते हैं ना पोलो चॉकलेट आता है, पोलो टाइप का चॉकलेट, तो उसमें क्या होता है ऐसे टाइप का पैकेट होता है, तो इसके अंदर से चॉकलेट है। अगर हम एक का फाइंड आउट कर दिए वॉल्यूम कितना है, एक चॉकलेट पे कितना वॉल्यूम मिलता है, तो इसमें पूरा कितना जाएगा, मतलब क्या है ना इसका वॉल्यूम और ये इसका वॉल्यूम को डिवाइड करना। जैसे हम लोग वहां पे किए थे जग्स ऑफ वाटर वाला एक फॉर्ट था क्वेश्चन नंबर 6, और एक कोनिकल जग था, तो कितना पानी इसमें रहता था, हम लोग डिवाइड किया था सेम जो विल बी। तो अलग अलग क्वेश्चन बनाना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रैपर दिया हुआ है और एक टैबलेट का डायमेंशन दिया है, तो उस रैपर में कितना टैबलेट हम रैप कर सकते हैं। Simple write down number of tablet we can wrap is equals to volume of wrapper upon volume of tablet. रैपर का वॉल्यूम टैबलेट का वॉल्यूम को क्या करना है डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ टैबलेट मींस ये वाला फार्मूला सिलिंडर दोनों को दोनों, तो फार्मूला क्या आएगा 5x, इसमें 2 आएगा, और टैबलेट के लिए क्या आएगा 5x, इसमें 1 आएगा, 5 10 से। अब इसके रेडियस देखो, टैबलेट का रेडियस पूरा का रेडियस क्या है 7 into 7 into 2 टाइम x2 कितना है 100, इसमें R1 कितना है 7, तो 2 टाइम में लिखेंगे 7 into 7, और इसका हाइट कितना है 5, that means 20 tablet we can wrap in that wrapper. अभी इस रैपर में कितने टैबलेट कर सकते हैं 20 नंबर ऑफ टैबलेट हम रैप कर सकते हैं। that means क्वेश्चन में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं डिस्कस आएगा यहाँ पे, क्या लिखना ये वाला पार्ट गिवन किसके लिए दिया था टैबलेट के लिए, ये वाला पार्ट गिवन किसके लिए दिया था रैपर के लिए दिया था, हमको फाइंड आउट करना कितने टैबलेट को दोनों का करना है डिवाइड, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल, तो हम से कर सकते हैं 11 बड़ा डिफिकल्ट है, 12 जो हम लोग डिफिकल्ट है। Okay, see what is given in the 11th one. Find the surface area and the volume of the baseball showing in the figure. अब इसका क्या फाइंड आउट करें, सरफेस एरिया और वॉल्यूम दो फाइंड आउट करें। एक स्फीयर है, गिवन डेटा क्या दिया है पूरा ऊपर नीचे मतलब उसको होता है डायमीटर। अब हमको डायमीटर कोई काम नहीं आता, तो पहला स्टेप है उसको रेडियस में कन्वर्ट करो। अब हमको क्या पूछा सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों फाइंड आउट करें। सरफेस area of sphere is equals to
4 पाई आर स्क्वायर। हम लाइन पर देखो तो समझ में आ जाएगा। पाई को तो मतलब क्यों लिया ना, रेडियस दिया 21 दिया, आर स्क्वायर 21 into 20, so 4 pi r square means 2 times 7 3 जा 20, just to multiply multiplication it will be 88, it will be 63, that's multiply एक बार देख लो, so it will be 5574 centimeter square. Now second one is volume also different. So volume of sphere is equals to 4 upon 3 pi r cube. Here the formula. So 4 upon 3 pi into 22 upon 7 r cube means 21 into 21 into 21. 7 3 is 21. 3 also cancel. That means we have to multiply 4 and 22 and 21 is the 440. So multiply maybe this one 8 into 21 this will be like you multiply with that. लेकिन क्वेश्चन में दिया डायमीटर दिया, दो चीज पूछा, ऐसे कोई डिफिकल्ट नहीं है। Now the 12th one, the last question of this exercise is given that as shown in figure, a cylindrical glass contains water, a metal set of diameter 2 cm is immersed in it. Find the volume of the water. That means एक मेटल यहाँ पे डूबा हुआ है, तो पानी अभी यहाँ तक दिख रहा है, तो ये एक्चुअल पानी का वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि मेटल की वजह से पानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा होगा कुछ बर्तन में पानी रखते हैं, कुछ डुबा देते हैं, पानी अपने ऊपर आ जाता है, तो पानी पूरा उतना नहीं है, पानी कुछ कम है, इसकी वजह से यहाँ तक दिख रहा है। तो हमको फाइंड आउट करना एक्चुअल वाटर कितना है, तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ जो दिखने वाला वाटर का वॉल्यूम से इसको हमको माइनस करना है। समझ रहे क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पे पानी कितना है फाइंड आउट करना। अभी जो दिख रहा है वो पानी वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि इसके साथ इसका वॉल्यूम में ऐड हुआ है, तो सिंपल हम दोनों का वॉल्यूम को माइनस करना है, ये कंसेप्ट है। अब गिवन डेटा में क्या लिखना है, फॉर सिलेंडर, फॉर सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेनर ग्लास कंटेनर के लिए डायमीटर कितना दिया है, 14, डायमीटर मिलते ही उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको डायमीटर का भी काम नहीं आता है। एंड द हाइट ऑफ वाटर हाउ मच गिवन, 30, हाइट ऑफ ग्लास में लेना है, हाइट ऑफ वाटर हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, क्यों पूरा हाइट का मतलब कि पानी का हाइट सेंटीमीटर। देन स्फेरिकल बल्ब के लिए क्या दिया था, डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो इसलिए आप मान दे रहे थे हाइट तो एक ही है, तो हाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फॉर मेटल स्पीयर, डायमीटर इज गिवन हाउ मच, 2 सेंटीमीटर, अगेन डायमीटर मींस क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस 1 सेंटीमीटर, यू हैव वन दैट मींस 2। अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सिलिंड्रिकल कंटेनर है जिसमें स्फीयर डूबा हुआ है, तो पानी यहाँ तक आ गया। अब एक्चुअल में पानी कितना है, जबकि ये हाइट कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, और जो इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना वॉल्यूम ऑफ वाटर को माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे को वॉल्यूम ऑफ वाटर, दैट मींस वी राइट डाउन, तो लिखना स्टेटमेंट एक्चुअल volume of water is equals to volume of water, so that जो दिखता है माइनस वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। समझना मैं क्या करता हूँ, जो वाटर दिख रहा है उसका मेटल से माइनस कर दो, पानी थोड़ा कम आ जाएगा, जो कम आएगा वही चला जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर सोर्स के लिए फॉर्मूला क्या आएगा,
ना पाई आर स्क्वायर एक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब. So pi r square x means both having the pi, so you can take the pi as a common. So last में pi और अभी pi को common लेते हैं. r1 square r कितना है 7 into 7 उसका हाइट कितना दिया हुआ है 30 माइनस मैंने pi common लिया हुआ है बाद में pi मल्टीप्लाई करेंगे. Here pi r cube pi तो चला गया है 4/3 r cube means 1 into 1 into 1. देखो पाई बाहर ले लिया r1 स्क्वायर इनटू x 2 बार x इसमें 4/3 पाई तो बाहर चला गया r2 क्यूब r2 हो गया 1 1 का क्यूब 3 डायरेक्ट. नाउ लेट्स सॉल्व that is equals to pi 749 into 3 947 into 14 12 14 1470 minus 4/3 4/3 should divide, so keep this 4/3 like this. So it will be pi ऐसे divide कर लेते हैं 300 3 से 21 करें 2 3 4 12 to 14 करें 1 3 1 3 1 4 minus 4/3. तो मैंने क्या किया डिनोमिनेटर सेम कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई. pi means is given in textbook. Pi is not given, so keep in the pi formula. pi को दिया है हमने pi में पीछे आंसर दिया हुआ 3.14 सब्स्टिट्यूट करना pi इनटू अब इसको माइनस करते हैं 4410 से 4 जाएगा तो 4406 अपॉन 3 बस आंसर 4406 pi अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब. और मैं समझाता हूँ इसको फिर जाता है. ठीक है तो हमको सिलिंड्रिकल कैनिस्टर में के लिए दिया हुआ है कि गिवन डेटा डायमीटर दिया है और हाइट दिया हुआ है और मेटल स्फीयर के लिए ये दिया हुआ गिवन डेटा. अब एक्चुअल वाटर फाइंड आउट करना जो दिख रहा है पानी उसमें से स्पिन को माइनस कर देना. तो उसके लिए फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया -4/3 1 into 1. अब इसमें से मैंने क्या किया इन लोगों मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना 1 सा 1470 माइनस ये 4/3. अभी माइनस करने के लिए क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्या किया 300 3 से 21 करके 3 4 20 40 1 3 1 4 माइनस इसका तो 4 यहीं पर रहेगा डिनोमिनेटर आ जाएगा 3 माइनस का कितना हो गया 55. This much is that exercise. Next we will do the second exercise next class. Go for all.